हम लोग ये सब पढ़ चुके थे, वीडियो से शुरू करना था, वीडियो नंबर 9। हेलो एवरीवन, डायरेक्टली वीडियो स्टार्ट करते हैं और जो सर यहाँ पे समझे वही सब समझाया जाएगा, समझते हैं। ससुरा इतना गोल गोल का घूम रहा बाटे हो जा, बफरिंग हो रहा बा। पेज को रिफ्रेश मारते हैं, फिर से चलाते हैं, इस बार नहीं हुआ बफरिंग। Hello everyone, this is our Cisco Packet Tracer assessment usage walkthrough video. In this video we're going to take a look at two ways that Cisco Packet Tracer can be utilized within your netacad.com assessments. Now तो netacad.com के अंदर जो भी एग्जाम्स वगैरह या जो भी असेसमेंट हो गए हम लोग का नॉलेज चेक के लिए, उसके लिए पैकेट ट्रेसर दो तरीका से यूज किया जा सकता है। हम लोग अभी देखे थे PTMO, पैकेट ट्रेसर मीडिया ऑब्जेक्ट मोड, और PTSA, पैकेट ट्रेसर स्किल असेसमेंट। तो ऊपर वाले में कुछ कंप्लीट करने को होगा, जो कंप्लीट का आधार पर क्विज या जो भी जहाँ भी आंसर देने के लिए, पैकेट ट्रेसर स्किल असेसमेंट खुद में एक स्किल असेसमेंट है जिसमें नेटवर्क बनाना हो सकता है, नेटवर्क मॉडिफाई करना हो सकता है, जिसके आधार पर हम लोग को स्कोरिंग किया जाएगा। This is pretty cool because we've already become masters of Packet Tracer, or we're getting there, and now we'll actually be able to utilize it inside of our exam environments itself. So here I am in a random course I chose called Networking Essentials, in an exam I chose called Chapter 1 through 5 Checkpoint Exam. Now in this exam, it's full of multiple choice questions, and it just so happens that one or maybe a few of them have Packet Tracer integrated into it. Now I didn't do too well in my last exam, I got a 0%, but now that you're here, I think we can do better. So I'm going to go ahead and click on resume my last attempt, and I should be able to load up the exam. Now, I need to change my screen size a little bit, so let me just resize my window and we'll continue. Awesome. So now that we were resized, I can click on continue, and when I click on continue, it's going to ask me to run a Java file. So I'm going to open that Java file, then I'll get a Java applet that asks me to run, and we'll go ahead and click on that as well. And now, in the bottom left corner, Packet Tracer will start to initialize on my machine, and it's going to be able to be utilized in this multiple choice exam. So we'll sit here and wait, but it's going to make it through 9 different steps of loading, then we should be able to click on the begin assessment button. So it jumped to 9 out of 9, and now I'm here at ready. I can click begin assessment. Now, the multiple choice exam loads up, and this is full of many different questions. This exam happens to have 26 questions, but one or multiple of these is going to have a packet tracer component inside of it. And sorting through these questions rather quickly, we'll find the one that does. It's right here. I can click on that question and check this out. Open the packet tracer activity. Perform the task in the... तो जैसे इस क्वेश्चन में हम तो बोल तो कुछ नहीं रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में जैसे होगा क्या, जैसे कोई भी असेसमेंट रहेगा तो उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रन होने से पहले सबसे पहले पैकेट ट्रेसर ही इनिशियलाइज होगा कि पैकेट ट्रेसर हम लोग एग्जाम के बीच में रन कर सकते हैं, हम लोग के पास इंस्टॉल्ड है कि नहीं। अगर होगा तभी ये एग्जाम का स्टार्ट होगा। अगर हम लोग शुरू में ही वो इंस्ट्रक्शन दे देगा, शुरू में इंस्ट्रक्शन मतलब कहाँ पे, तो यहाँ पे जो कंटिन्यू किया गया था, तो यहाँ पे पैकेट ट्रेसर इनिशियलाइजेशन हुआ था ना, वही था, ठीक है। और एक बार पैकेट ट्रेसर इनिशियलाइजेशन का 9 स्टेप पूरा हो गया तो फिर क्या होगा, जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे उस एग्जाम में, MCQs या जो भी, वो सब रन होंगे। उसमें से कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स होंगे जिसमें पैकेट ट्रेसर का यूज होगा, मीन्स कि पैकेट ट्रेसर असेसमेंट सबसे रिलेटेड। तो ये फिल्टर डाउन करके उस ऑब्जेक्टिव पे पहुंचते हैं, और उस ऑब्जेक्टिव पे पहुंचने के बाद क्या होता है, यही वो ऑब्जेक्टिव है जिसमें लॉन्च पैकेट ट्रेसर, मतलब इस एक्टिविटी से रिलेटेड जो पैकेट ट्रेसर फाइल होगा वो लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। Activity instructions and then answer the question. What is the code displayed on the web page? What web page? अब ये यहाँ पे जैसे है जो कोड वेब पेज पे कौन सा डिस्प्ले किया गया, अब यहाँ पे कौन सा वेब पेज, तो जो पैकेट ट्रेसर के एक्टिविटी में जो वेब पेज होगा उस एक पैकेट ट्रेसर के एक्टिविटी वाले वेब पेज में, इसीलिए लॉन्च पैकेट ट्रेसर पहले। Well, we have to click on launch PT, and this is going to allow us to actually have the exam provide us the packet tracer file. Our machine will open the packet tracer file. We'll be able to do the steps and the instructions, and we can answer the question. So let's do it. I can take this packet tracer topology, move it over to the right, take the instructions, move it to the left, and because this packet tracer item, it's part of a large exam. अब ये पैकेट ट्रेसर फाइल था,
ये उसके साथ में पैकेट ट्रेसर एक्टिविटी था। तो याद है ना, पैकेट ट्रेसर फाइल फॉर्मेट भी अलग अलग होता था। अगर किसी में एक्टिविटी इंक्लूडेड है तो शायद PKA था, और जिसमें पैकेट ट्रेसर एक्टिविटी नहीं इंक्लूडेड था, जनरल था जो भी सिमुलेशन था, तो PKD फॉर्मेट था। तो ये PKA होगा जिसमें इंस्ट्रक्शंस भी पैकेट ट्रेसर एक्टिविटी का इंक्लूडेड है, और सैम्पल टोपोलॉजी भी है, जो भी नेटवर्क भी है, सिमुलेशन नेटवर्क। So we don't have a huge instruction set. It's just one question in the exam. So we'll follow through the instructions, do whatever needs to be configured, and then we should be able to view a code that's displayed on a web page. After we've found that code, you can just go ahead and minimize your packet tracer, choose the right answer for what. तो वहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन था वो चीज़ परफॉर्म करना है, वो कैसे करना, क्योंकि ये एग्ज़ाम है तो हम लोगों को खुद भी उसमें दिमाग लगाना होगा, कैसे करके जो एक्टिविटी दिया जा रहा है वो परफॉर्म करेंगे। और होने के बाद वो जो वेब पेज खोलने के लिए बोला जा रहा है वो वेब पेज खोलेंगे, उस वेब पेज पे कुछ लिखा हुआ होगा, इस चारों में से, इस ऑप्शन में से कोई कोड लिखा हुआ, जो भी कोड वहाँ पे लिखा होगा वो यहाँ पे टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे। यही हम लोग का आंसर हो गया। That code is, maybe it's well done, maybe it's success. I like configured right, I'm guessing. And then when we finish all of our questions in this checkpoint exam, we can go ahead and click submit. And when we click submit, Packet Tracer is going to take all of the items that we've done an answer for, and it'll give us. अब इसमें ये परफॉर्म नहीं करके पैकेट ट्रेसर का वो जो था, तो उसमें ये एग्ज़ाम सही से नहीं दिया, मीन्स के उसमें वो एक्टिविटी परफॉर्म करना था। परफॉर्म करके जब वो PC0 पे जो वेब पेज दिखाई देता है उसको खोलना था। मतलब ये अभी एक्टिविटी में था ना कि PC0 को ऐसे IP एड्रेस सबसे कन्फिगर करना था कि वो www.server.2.com को एक्सेस कर सके, और इसको एक्सेस करने के बाद इस सर्वर पे जो भी इस डोमेन पे कोड होगा, इस डोमेन के वेबसाइट पे वो कोड बताना था उसमें। लेकिन इस एग्ज़ाम में क्योंकि हम लोग को पैकेट ट्रेसर से जनरली समझाया जा रहा है, तो डायरेक्टली उसने, मतलब बताने वाले जो हैं उन्होंने गेस कर दिया कुछ भी। तो गेस इन्होंने क्या, कन्फिगर राइट। अगर ये गलत होगा, ये आंसर ढूंढ के नहीं किया, ये तुक्का है। आंसर अगर सही होगा तो कन्फिगर राइट का नंबर मिल जाएगा, नहीं सही होगा तो नंबर कट जाएगा। Answer for, and it'll give us a grade back at the end. Now, it doesn't like that I didn't answer a lot of those questions, so it gives me a little bit of a warning here. I'm going to click grade assessment anyways. After clicking grade assessment, didn't beat my last score of 0, I'm still there, but we're able to take a look at our feedback and see how we did for this entire. तो पूरा गलती था, मीन्स कि उसका जो गेस था इनका जो कन्फिगर्ड करेक्टली वो सही आंसर ऑप्शन नहीं था। Their exam. Now this is just one type of utilizing packet tracer within assessments. Let's take a look at one that's even more powerful. So I'm going to close off this window. ये तो क्या था, ये था ना पैकेट ट्रेसर मीडिया ऑब्जेक्ट की तरह ये था। क्यों? क्योंकि पैकेट ट्रेसर इसमें खुला, उसमें कुछ परफॉर्म करना था, उस परफॉर्मेंस के बेस्ड पे क्विज या कोई आंसर देना था। पैकेट ट्रेसर स्किल असेसमेंट में, पैकेट ट्रेसर में कुछ करने का स्किल असेसमेंट होता है, ठीक है, मतलब कोई नेटवर्क बनाना, कोई नेटवर्क को करेक्ट करना, कन्फिगर करना, ये सब चीज़। And I have another item that we're going to take a look at, and this one's actually called the Packet Tracer Skills Assessment. This one I also scored a 0 on. I got to work on my skill set. I'm going to hop into the retake assessment, and we're going to go and take a look at what is called a PTSA. Now, first off, I get a PTMO था, Packet Tracer Media Object, ये PTSA होगा, क्योंकि ये skill assessment pop-up window for Java. I'll click OK. Then I got to do some resizing of my window again. So my window is resized. I need to run the Java applet just like before. Then if I scroll down, we can actually watch Packet Tracer initialize. Now this is called a PTSA, which is a Packet Tracer Skills Assessment. And with this, it's not full of multiple choice questions. This is going to be a standalone single Packet Tracer file similar to the PKA. इसमें सिंगल पैकेट ट्रेसर फाइल होगा जिसमें हम लोग को काम सब करना होगा जो भी बताया जाएगा। जैसे PKA था ना, पैकेट ट्रेसर एक्टिविटी फाइल, वैसे ही we may have mentioned previously. And with that being said, we're going to have a full-blown huge instruction set because it's just one big skills assessment. So we'll watch the loading steps go all the way up to 8, then we should be able to click on Start Assessment. So it loaded up. We have 2 hours to complete our assessment. I'll go ahead and click on Start. When I click on Start, Packet Tracer will give me the file on my machine, and I'll be able to complete this activity. And we're going to see how our answers are going to be uploaded back. It's pretty sweet. So let me move over this lab topology as it comes online, put it on the right,
Instructions again, I'll put on the left so we can view them both. But what you're going to notice immediately is look at the length of the अब इसमें पूरा नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करना है, या फिर हम लोग का स्किल चेक होगा, इसलिए इंस्ट्रक्शन लंबा कि क्या क्या करना है हम लोग को, ठीक है। और ये सब परफॉर्म करने के बाद जब सबमिट करेंगे तो आंसर अगर करेक्ट रहा तो ठीक है, automatically wants these instructions. It's one huge instruction window because there's a lot of stuff to configure in this skills assessment. As you're configuring, you can take a look at the bottom right corner. We don't see a completion percentage down here. You have to know that you're doing it right and you're building a successful config. You're not going to save this file to your machine. When you're done, you can minimize the packet tracer file, and over here at the bottom, you can click Save Assessment and continue later if you really need more time to work on it, or if you feel confident, like I feel confident, I've done nothing, I can go ahead and click Submit Assessment. तो अब जब भी हम लोग का काम वहाँ पे हम लोग जो भी कॉन्फ़िगर करने बोला गया वो कर देंगे आप, तो यहाँ पे हम लोग सबमिट असेसमेंट कर सकते हैं। या फिर एक और ऑप्शन है कि हम लोग जितना किए हैं उसको सेव कर लें और बाद में उसको कंटिन्यू करें। सबमिट असेसमेंट में जितना किए होंगे वो आंसर के रूप में सबमिट हो जाएगा, और सेव असेसमेंट में जो भी किए होंगे वो सेव होकर हम लोग बाद में आके वहाँ से आगे बढ़ा सकते। And this is going to take all the work that I didn't do, and it's going to take that work and send it back to netacad.com. So if you spend an hour and a half on this and did an amazing config, when you click Submit Assessment, it automatically takes your configuration and sends it back to netacad.com. So it'll count up to 18 out of 18, and we'll be able to see something pretty cool. 0% So I get my percentage back. I scored a 0 again. I got to put some time in. But the neat thing about these PTSAs is the item feedback. I'm going to click on item feedback, and this is going to help me improve my. अब ये आइटम फीडबैक क्या होगा? आइटम फीडबैक होगा जो हम लोग जो भी किए हैं उससे रिलेटेड फीडबैक, हम लोग क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं, क्या करने की ज़रूरत है और वगैरह वगैरह। Skill set. I can sort through this information and I see a list of objectives for what was covered on this lab. I can go through the details and see what I was scored incorrect on and what I didn't do successfully. So use Cisco Packet Tracer to hone your skills and use that tool set of Packet Tracer in netacad.com that allows you to become a Cisco All-Star. चलिए हम लोग Cisco All-Star बनेंगे। ये ख़त्म। अब हम लोग 4.3.1.1 आएंगे, मतलब फोर्थ चैप्टर का थर्ड सेक्शन। तो ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम लोग को क्या क्या आ जाएगा? पैकेट ट्रेसर का फिजिकल व्यू। ये कंक्लूजन लग रहा है हमको देख के, शायद कंक्लूजन है कि क्या पता नहीं। तो हम लोग को पैकेट ट्रेसर फिजिकल व्यू समझ में आ जाएगा। पैकेट ट्रेसर फाइल असेसमेंट टाइप्स हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं। एडिशनल हेल्प के लिए हम लोग जैसे ट्यूटोरियल्स पहले भी देखे थे और हेल्प सेक्शन के अंदर पैकेट ट्रेसर में देख सकते हैं। कुछ एग्जांपल देखने के लिए फाइल ओपन सैंपल करके कर सकते हैं। और हम लोग को लग रहा है पैकेट ट्रेसर क्विज मॉड्यूल कि हम लोग का ख़त्म हो गया फोर्थ चैप्टर। तो पैकेट ट्रेसर बेसिक्स क्विज जो है, तो हम लोग को मॉड्यूल सेक्शन में जाना है। मॉड्यूल सेक्शन मतलब ये सेक्शन, और इसमें कंप्लीट द क्लास क्विज बेसिक्स स्टेप 1 यहाँ पे ये है, और लोकेट एंड चैप्टर क्विज। एक चैप्टर क्विज साइड सेक्शन है क्या, लगता पहले था, पहले जो भी इंटरफेस अभी ये डिज़ाइन में है तो वहाँ पे था, और क्विज लोकेट द चैप्टर क्विज यू वुड लाइक टू एक्सेस, उसको फिर एक्सेस कर लेना। फिफ्थ चैप्टर हम लोग कब पढ़ेंगे? जब क्विज का ये वाला क्विज हम लोग बना लिए रहेंगे। यही फोर्थ के बाद क्विज है, तो अभी ये टिक क्यों मारा? हम लोग क्विज तो बनाए नहीं है, हटाओ टिक। चलो 1 मार्च 2022 से पहले कंप्लीट करना, तो हम लोग अभी कर रहे होंगे कंप्लीट। क्या है? पैकेट ट्रेसर बेसिक्स क्विज जो है फर्स्ट 4 मॉड्यूल पैकेट ट्रेसर 1.1 का इंट्रोडक्शन टू पैकेट ट्रेसर 1.1 का 4 मॉड्यूल कवर करता है, जो 4 मॉड्यूल अभी जस्ट हम लोग ख़त्म किए हैं। और ये डिज़ाइन प्रोवाइड का इट इज़ डिज़ाइन टू प्रोवाइड एन एडिशनल अपॉर्चुनिटी टू, मतलब स्किल्स एंड नॉलेज जो भी कोर्स में प्रेजेंट किया गया है उसको प्रैक्टिस कर सके हम लोग। ये एग्ज़ाम में ये भी होगा, और हम लोग को फ्यूचर स्टडीज़ में ये टूल यूज़ करने के लिए तैयार होंगे हम लोग। एक से ज़्यादा अटैम्प्ट दे सकते, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, सिंगल अटैम्प्ट। और ग्रेड बुक में ये ग्रेड जो भी होगा वो अपीयर नहीं होगा। ये मल्टीपल टास्क हैं जो कि क्विज में अवेलेबल होंगे। क्विजेस अलाउ फॉर पार्शियल क्रेडिट स्कोरिंग, मतलब जितना पार्शियल का स्कोरिंग भी होगा, ठीक है। पॉइंट ऑन क्विजेज कैन बी डिडक्टेड फॉर आंसरिंग इनकरेक्टली, मतलब नेगेटिव मार्किंग हो सकता है। और फॉर्म इतना क्विज इतना
ग्रेडिंग मेथड हाईएस्ट ग्रेड जो भी कंटिन्यू टू अटेम्प्ट 1 है, इन प्रोग्रेस स्टार्ट कंटिन्यू द लास्ट। लगता नहीं, हमको नहीं याद है कब अटेम्प्ट 8 हुआ था। जो भी ये रहा क्विज, स्विच टू द सिमुलेशन मोड, सेलेक्ट यहाँ, चलिए देखते हैं क्या। सिमुलेशन मोड में जाना है, डेस्कटॉप 0, लैपटॉप 0, डेस्कटॉप या HTTP, enter a URL www.cisco.com and go. What is the value of the destination port number on the outbound packet that was created? यहाँ पे फाइल कहाँ है जिसमें ये चीज़ करना है? जिस पे ये चीज़ हम लोग को करना है वो फाइल किधर है? वैसे डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर ऑन द आउटबाउंड डेस्टिनेशन, अच्छा ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं वैसे कि ये जनरल है कि सिमुलेशन मोड में अगर पैकेट ऐसा सबसे पहले खोल लेते हैं हम लोग। सिमुलेशन मोड में कोई भी HTTP डेस्कटॉप सेलेक्ट एक एंड डिवाइस करते हैं, ठीक है, और फिर क्या करते हैं, सिमुलेशन मोड में जाना था तो हम लोग लॉजिकल मोड में रियल टाइम से सिमुलेशन मोड में गए, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्या करना है, एंटर द URL cisco.com एंड क्लिक गो। अब यहाँ पे cisco.com इंटर करना है URL, तो URL एंटर कहाँ पे करेंगे, कोई बता सकता है? हम लोग यहाँ पे क्लिक करके डेस्कटॉप वेब ब्राउज़र में जाके क्या बोला गया था, www.cisco.com ना, एंटर करते हैं, देखते हैं क्या होता है। .cisco.com, ठीक है। पोस्ट नेम अनरिजॉल्व, ये इसलिए भी है, अच्छा चलो कोई नहीं। कुछ कनेक्टेड है ही नहीं तो किसको बेचारा पैकेट भेजे। हम भी सीखने का ही ट्राई कर रहे थे, कुछ कहीं हो जाए, भी पैकेट नहीं आया, ठीक है। तो हम लोग इसको छोड़ते हैं, हम लोग एक पुराना अपना नेटवर्क निकालते हैं, ठीक है। पुराना नेटवर्क मतलब रिसेंट फाइल में से चैप्टर 4 का ही कोई लर्निंग टोपोलॉजी, क्योंकि हम लोग सर्वर वगैरह सब के साथ ये तो कुछ ज़्यादा ही कहा चला है। इस बैकग्राउंड को डिलीट कर देते हैं। रिसेट, ठीक है। नहीं ये हम लोग का नहीं है, तो इसको भी सेव हम लोग अगर वापस से किस पे चले जाएं, पैकेट चैप्टर 2 वगैरह पे, नो इसमें एक जगह सर्वर कॉन्फ़िगर था लेकिन इसमें PC सब कुछ है ये नहीं, देखें। अच्छा ये चैप्टर 4 का ही लर्निंग 1 2 3 है, हम लोग ओपन ही पे मारते हैं और चैप्टर 2 का सिंपल नेटवर्क जो है, या फिर चैप्टर 2 का सिंपल नेटवर्क में है। तो यहाँ पे हम लोग PC पे गए, डेस्कटॉप पे गए, HTTP जो था, HTTP मतलब वेब ब्राउज़र ही होना चाहिए जो हम लोग को बोला जा रहा था जाने के लिए, इसमें www.cisco.com। पहले सिमुलेशन मोड में चले जाते हैं कि पैकेट देख सकें हम लोग, ठीक है। वो यहाँ पे पैकेट है, अब इस पैकेट का हम लोग को क्या देखना था, तो नॉट इज द वैल्यू डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर ऑन द आउटबाउंड DNS पैकेट। तो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या है, जो कि ये जो DNS पैकेट है, तो पहले वो DNS का पोर्ट नंबर जो होगा वही डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर होगा ना। तो DNS का पोर्ट नंबर शायद कितना होता, 69 या कुछ ऐसा ही होता, काश 69 सही हो जाएगा। तो यहाँ से भी क्लिक करके हम लोग ये पैकेट देख सकते हैं, या यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये रहा आउटबाउंड PDU डिटेल्स में हम लोग डेस्टिनेशन, अच्छा 53 होता है, तो 53 है डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, तो इसका आंसर हम लोग को मिल गया 53, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, रेफर टू द एग्जिबिट, हाउ डू डिस्प्ले द पॉपअप विंडो टू शो द एडिशनल डिवाइस नेम, हाउ डू यू डिस्प्ले द पॉपअप विंडो टू शो द एडिशनल डिवाइस इंफॉर्मेशन। अच्छा मतलब ये जो पॉपअप विंडो है इसको और इससे ज़्यादा डिवाइस इंफॉर्मेशन हम लोग को दिखाना है। तो चूज फाइल, डिस्प्ले इन्फो फाइल, होवर ओवर द कर्सर ओवर द डिवाइस आइकन। अच्छा मतलब कोई भी डिवाइस का मतलब पॉपअप विंडो कैसे दिखाएंगे हम लोग एडिशनल डिवाइस इन्फॉर्मेशन के लिए,
उसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, किसी भी डिवाइस पे होवर करेंगे तो दिखा देगा, ठीक है। तो होवर द कर्सर ओवर द डिवाइस आइकन, ये शायद दिखा देना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। हाउ डू डिस्प्ले द इंटरफेस नंबर वेयर द केबल इज अटैच्ड टू द डिवाइस। द इंटरफेस नंबर कैसे हम लोग दिखाएंगे, तो इसका या ये था, हमको जितना याद है कि हम लोग सेटिंग में जाते थे शायद, टूल्स या व्यू में, टूल्स में जाते थे क्या, प्रेफरेंसेस में, यूजर्स प्रेफरेंसेस, कहाँ प्रेफरेंसेस, इसमें था कि शो पोर्ट नंबर्स या कुछ ऐसा था। तो पोर्ट लेबल्स, हाँ कहाँ गया, क्या पूछा क्या था, एक मिनट। इंटरफेस नंबर वेयर द केबल इज अटैच टू अ डिवाइस, इंटरफेस नंबर जिससे केबल अटैच्ड है। द शो डिवाइस नेम लेवल, शो डिवाइस मॉडल, शो पोर्ट लेबल्स इन लॉजिकल, ये जो है ऑलवेज शो पोर्ट लेबल्स, ये शायद यहाँ पे दिखा देगा जो, ये जो है तो शायद ऑप्शन में वो होना चाहिए। So on the config tab of the device, choose so enter the no shutdown command, hover the mouse over the label must be manually entered। क्या बोल रहा है, इमेज ठीक से देखना चाहिए, जूम नहीं हो सकता। अच्छा जैसे ये राउटर 0/2 है, अच्छा तो ये इंटरफेस नंबर थोड़ा ही है, ये तो राउटर 0/2 है। How do you display the interface number where the cable is attached to a device? इंटरफेस नंबर जहाँ से, ये तो पोर्ट नंबर है ना, सो डिवाइस मॉडल, सो टेलीफोन लिंक, तो यहाँ पे हम ये इससे तो पोर्ट नंबर दिखा सकते हैं हम लोग किस पोर्ट से कनेक्टेड है, लेकिन इंटरफेस नंबर जिससे केबल अटैच्ड है, तो केबल ये जो है ये किससे अटैच्ड है, केबल अटैच बोल रहा ना, द जैसे इसमें FA0 द लेबल मस्ट बी मैनुअली एंटर्ड ऑन द कॉन्फ़िग टैब ऑफ द डिवाइस, शायद ये काम कर सकता है, चलिए देखते हैं। ऑन द कॉन्फ़िग टैब जो है इंटरफेस में, तो इंटरफेस नंबर जैसा कहीं तो हमको नहीं लग रहा, होगा भी नहीं। must be manually entered, enter no shutdown, इसका नो शटडाउन का होवर द माउस ओवर, एक ये ऑप्शन है काम का क्या, कहाँ होवर करने से दिखा रहा, पोर्ट तो दिखा रहा लेकिन कन्फिग टैब डिवाइस में शो इंटरफेस नंबर कहाँ है, जैसे इस राउटर का कन्फिग टैब जो है उसमें शो इंटरफेस नंबर जैसा कुछ कहाँ है, और इंटरफेस नंबर जिसमें डिवाइस, इंटरफेस नंबर तो पोर्ट नंबर हुआ, पोर्ट नंबर के लिए तो हम लोग प्रेफरेंसेज में जाते थे, लेवल मस्ट बी मैनुअली एंटर्ड ऑन द कॉन्फ़िग टैब, ये चारों में से कोई हमको नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों नहीं लग रहा। जैसे हम लोग इंटरफेस जो देखना होता था इस समय किसी में नहीं ना है, हो सकता है यहीं कहीं हो, देख लेते हैं। ये तो वायरलेस का इंफॉर्मेशन था, केबल पे होवर करके भी दिखाता होगा, होवर करने से ही देख सकते हैं, चलो होवर वाला मारते हैं, इसलिए केबल पे नहीं लेकिन उस राउटर पर करें तो कौन सा इंटरफेस से कौन सा केबल कनेक्टेड है, लैन अप कहाँ, उसके लिए तो वही ना करना होगा जी, प्रेफरेंस में जाके, अच्छा व्यू में कुछ है क्या, व्यू पॉइंट, पॉइंट व्यू से हो सकता है क्या, तो एक्सेस ऑफ व्यू पॉइंट ना, मैं इसी होवर पे लेके चलता हूँ। A technician selected the GUI interface on a wireless router and added a DNS address, इतना ठीक है। Technician then immediately exited the GUI interface, what will occur as the result? GUI में सेव करने का ऑप्शन होता है इसीलिए ये सेव ही नहीं होगा जो मेरे अकॉर्डिंग, मतलब यहाँ पे अगर हम DNS GUI में गए, DNS एंटर किए तो यहाँ पे सेव सेटिंग या फिर कैंसिल चेंजेस, एग्जाम्पल जैसे हम इसको चेंज किए 1 to 1 कर दिए,
और इसको कैंसिल कर दिया, तो वो 1220 ही रहना चाहिए, वो चेंज नहीं हुआ होगा, तो कुछ चेंज नहीं होगा। Save the convert DNS will not be connected. DNS server address will not be sent to connected device. यही आंसर होना चाहिए। रेफर टू दैट व्हाट डज द शेडेड एरिया रिप्रेजेंट। अब एग्जिबिट में ये होम सिटी में है, होम सिटी का कॉर्पोरेट ऑफिस होगा, तो वायरलेस सिग्नल। अच्छा, ये ब्लू एरिया को पूछ रहा है क्या, शेडेड एरिया, तो ये वायरलेस का एरिया कवरेज जोन है। रेफर टू द व्हाट डज द मैचेस द पैकेट। अब ये जो है इसमें बैटरी है, सोलर पैनल है, ये सब, तो ये स्मार्ट IoT डिवाइसेस में नहीं, सिक्योरिटी डिवाइसेस में, IoT डिवाइसेस में आ जाएगा। केबलिंग कंपोनेंट भी नहीं है ये सब। सेंड ए सिंपल PDU IoT डिवाइसेस ही होगा इसका। सेंड ए सिंपल PDU फ्रॉम द न्यू PC टू द सर्वर, ट्रू और फॉल्स। The ping will work on the newly added PC as soon as the light turns green. Send a simple PDU from a new PC में जब तक उसको IP एड्रेस नहीं दिया जाएगा तब तक वो बेचारा कैसे पिंग करेगा। Refer to the exhibit. The above shown icon is the above icon in the lower right hand corner of the packet tracer. What might the person using the packet tracer be doing? ये ऑलरेडी किस मोड में है, ये सिमुलेशन मोड में है। टेस्टिंग कनेक्टिविटी, हाँ ये कर सकता है, कम्प्लेक्स PDU वगैरह से। .pka का है तो शायद एक्टिविटी वाला होना चाहिए, मुझे इमेज बिल्कुल याद नहीं है। वेयर इन द पैकेट ट्रेसर कैन यू क्रिएट ए न्यू बिल्डिंग और वायरिंग क्लोजेट। फिजिकल वर्क स्पेस में। लॉजिकल टोपोलॉजी होता है, फिजिकल टोपोलॉजी होता है, तो फिजिकल में, ठीक है। ए टेक्नीशियन नीड टू ऐड ए होम वायरलेस विच ऑप्स आइकन। होम वायरलेस राउटर ऐड करेगा ना, तो वायरलेस सेक्शन में जाना चाहिए। तो पहली बात, वायरलेस सेक्शन के लिए क्या, ये तो सबसे पहले राउटर नेटवर्किंग डिवाइसेस का ये सेक्शन है, तो इसमें तो जाना ही पड़ेगा, तभी ना वायरलेस कुछ भी। दिखा देता हूँ मैं, पहले इसमें जाएगा तब ना, ये वायरलेस का सेक्शन है, इसमें होम वायरलेस राउटर ऐड करेगा, है ना, पूछा था होम वायरलेस राउटर। एंड मैच ईच नंबर्ड पैकेट ट्रेसर मेन्यू आइकन विद द डिस्क्रिप्शन। अच्छा, आइकन 4 क्या, आइकन 4 इंस्पेक्ट के लिए है। इन्वेस्टिगेट डिवाइस टेबल्स, हाँ ये इंस्पेक्ट वही हुआ। आइकन 3 सिमुलेशन मोड के लिए है, तो क्रिएट कम्प्लेक्स PDU ये सिमुलेशन मोड में होगा। नहीं 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 नहीं, इन्वेस्टिगेट डिवाइसेस, डिलीट कंपोनेंट, एंटर सिमुलेशन, ये आइकन 2 डिलीट के लिए, डिलीट ए कंपोनेंट। आइकन 5 नोट के लिए, ऐड ए नोट। आइकन 1 जो है वो है कम्प्लेक्स PDU ऐड करने के लिए, सिंपल का और क्लोज्ड जैसा रहता है लेटर बॉक्स, लेकिन उसके बाद आइकन 6 किसके लिए है, फिजिकल टोपोलॉजी। डिलीट ऐड PC टू ए नेटवर्क, कहाँ है इसमें फिजिकल ऐड PC टू द नेटवर्क हो गया क्या, फिजिकल है, फिजिकल तो टोपोलॉजी है। इन्वेस्टिगेट डिवाइस टेबल, डिलीट कमेंट, तो सेलेक्ट सिटी, हाँ तो इसमें ही हो सकता है। 2 लैपटॉप नीडेड टू बी एडेड टू ए वायरलेस राउटर। एक PC या 2 लैपटॉप जो है वायरलेस राउटर पैकेट ट्रेसर नेटवर्क में ऐड होना चाहिए। व्हाट आइकन वुड प्रोवाइड द करेक्ट कंपोनेंट। कनेक्शन ही तो प्रोवाइड करेगा ना, वायरलेस राउटर से ऐड करना, उससे क्या, उसमें भी तो पोर्ट्स होते ही हैं कि आप तार से कनेक्ट कर सकते हैं। एक PCN टू नीड टू बी एडेड टू ए वायरलेस राउटर, ये तो PC है, तो ये PC ऐड करने के लिए था, ये मिसलेनियस है। ये नेटवर्किंग मेरे अकॉर्डिंग कनेक्शन ही होना चाहिए, क्योंकि उसी के थ्रू तो हम लोग वायर ऐड करेंगे। पैकेट ट्रेसर नेटवर्क में ऐड एंड एसोसिएट ए लैपटॉप एज ए डिवाइस एज ए वायरलेस ऑन द वायर। पैकेट ऐड एंड एसोसिएट ए लैपटॉप एज ए डिवाइस ऑन HTTP to connect www, what is the special message। भाई किस पैकेट ट्रेसर नेटवर्क में है, the laptop as a device to the wireless router use HTTP to connect www dot, what is the special। अच्छा, तो एक लैपटॉप डिवाइस हम लोग को वायरलेस राउटर से कनेक्ट करना है, फिर HTTP का यूज करके www.cisco.com पे जाना है, जिसमें मैसेज देखना है। तो एक काम कर, पहले से कनेक्टेड है ही इधर डेस्कटॉप का वेब ब्राउज़र पे गए, www.cisco.com। अच्छा, सिमुलेशन मोड में थे, रियल टाइम में जाने दो भाई, www.cisco।
पोस्ट नेम अनरिजॉल्व, मतलब ये सब सही से कनेक्टेड है नहीं, या है, हम गलती किए हैं, देखना चाहिए हम लोग को। इसका आईपी एड्रेस क्या है, 192.168.0.0, 100 इसका है 192.168.0, तो सेट कर 200.867.221.27। तो ये सिस्को सर्वर है ना, HTTP, ये तो फाइल गया था अभी, HTTP www, अच्छा सिमुलेशन मोड में देखें क्या चक्कर हो रहा है। DNS इसको मिल भी रहा है कि नहीं, स्पीड बढ़ा देते हैं। DNS रिक्वेस्ट ही क्या, डोमेन नेम सिस्टम मतलब फाइनली इसके पास DNS रिस्पॉन्स आया, तो STP, हम लोग www HTTP फाइल किधर, STP ही चल रहा आपस में। DNS फेल हुआ कि क्या हुआ, लैपटॉप से डोमेन नेम सिस्टम के लिए गया, इसमें डोमेन नेम सिस्टम में DNS में एसोसिएटेड होगा तब ना, कन्फर्म सर्विसेज कहीं पे होता है ना इसमें, ये है हम लोग का सर्वर, तो सर्वर में सर्विसेज भी एक टैब होता था ना, कहाँ गया, अच्छा ये रियल टाइम में है क्या, ना हमको तो दिख ही नहीं रहा, यही तो सर्वर है DNS, ये तो डिस्प्ले नेम, जो भी यही हमसे नहीं होगा, कोई पैकेट ऐसा अगर फाइल देता, हम लोग को बनना चाहिए वैसे ही है, लेकिन पैकेट ऐसा फाइल तो दो भाई, बनाए कहाँ से, use a packet tracer network, add an associate, use HTTP to connect to www.cisco.com। लोग देखते हैं एक चीज़, एक नया नेटवर्क बनाते हैं, इसमें एक लैपटॉप उठा के डाल देते हैं, एक वायरलेस राउटर डाल देते हैं, लेकिन लैपटॉप को अति करना पड़ेगा, पावर ऑफ ह्यूमन रिपोर्ट को हटाना, ये डालना, ये कनेक्ट होगा पावर ऑन, और एक सर्वर भी ऐड कर देते हैं, और इसको हम लोग, अब यहाँ पे जाके हम लोग क्या करते हैं, डेस्कटॉप मोड में गए, वेब ब्राउज़र में गए, cisco.com बोला था ना, पोस्ट नेम अनरिजॉल्व्ड, हाँ तो IP एड्रेस दिए नहीं तो क्या होएगा, यही ना होएगा, इसको IP एड्रेस, सबको एक लोकल IP एड्रेस कन्फिगर कर देते हैं, IP एड्रेस 192.168 डॉट, लेकिन DNS भी तो देना पड़ेगा, DNS सर्वर डॉट 0.3 देते हैं इसको, ठीक है, और DNS सर्वर भी भाई साहब तुम ही, डिफ़ॉल्ट, अच्छा ये IPv6 कन्फिग्रेशन था, सॉरी DNS सर्वर यहाँ, और डिफ़ॉल्ट गेटवे हम लोग का रहेगा 0.1, ठीक है, और सबनेट मास्क 255, ठीक ठीक है, इसको सर्वर था, इसको हम लोग कैंसिल मारते हैं, और वायरलेस राउटर का
फिजिकल GUI पहले से, तो इससे दोनों कनेक्टेड है ना बेसिकली, दोनों अलग अलग नेटवर्क है भाई। ये हमसे नहीं होगा, अभी अभी ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ जाएगा, इसमें हम गलतियाँ मारेंगे। यू मेड इट। Add a PC and connect it to wireless router with a straight through cable. What icons? Straight through cable का, अरे ये इसी के अंदर होगा, केबल से कनेक्ट करना। कनेक्शंस के अंदर इन रिक्वायर्ड केबल मिलेगा। फिनिश अटेम्प्ट, एक गलती हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन हम लोग फीडबैक से देखेंगे, ठीक है। हम लोगों का 2 गलती हुआ perhaps। द करेक्ट आंसर इज 53। ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये सही, 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 ये गलत है। अच्छा इसमें क्या गलती है? वायरलेस और पैकेट से व्हाट आइकन शुड प्रोवाइड अ करेक्ट कंपोनेंट। तो पीसी और लैपटॉप जो है wire added to a PC and 2 laptops need to be added to a wireless router पैकेट नेटवर्क। तो इसमें अगर पीसी या लैपटॉप तो शायद एंड डिवाइस वाला आंसर होना चाहिए, ये होना चाहिए। 4 आंसर क्या ट्रैक होगा ना, द करेक्ट आंसर इज 4। हाँ ये भी गलत, ये तो होना ही था भाई 2 को, उसके बाद सब सही, तो 2 गलती हुआ। 15 कहाँ नहीं बनाए हम? अच्छा अभी 15 भी कंप्लीट नॉट ग्रेडेड, ग्रेड कहाँ नहीं दिया गया बॉस? अच्छा करेक्ट आंसर तो वही है। वैसे 4 नंबर कटा, उसका शायद ग्रेड ही नहीं था कोई, या जो भी, तो 4 नंबर कटा, हाईएस्ट ग्रेड 87 आया। अटैम्प्ट अगला वीडियो अटैम्प्ट भी कर ही सकते हैं जितना वक्त कोई हो। 2 समझ ही गए। एक का गलती था कि वो सर्वर पे क्या होगा, उसके लिए नेटवर्क बना के करना होगा। एक गलती हम लोग किए थे, लास्ट एंड डिवाइस वाला होता, ठीक है, क्योंकि वो ये नहीं पूछ रहा था कि दोनों को कनेक्ट करने के लिए कौन सा कैटेगरी, वो ये पूछ रहा था कि एक लैपटॉप सॉरी एक पीसी 2 लैपटॉप चाहिए वायरलेस राउटर से, तो किस में वो लैपटॉप और पीसी मिलेगा, तो वो तो एंड डिवाइस के कैटेगरी में ही मिलेगा। इसलिए अभी ये वीडियो स्टॉप होकर अगला चालू होगा कुछ देर में। आई होप कि हाँ चल रहा था, सही है बस।